Why to wait? Let's get started. In a cup, let's put 3 tablespoons of flour. Now let's add 3 teaspoons of powdered sugar. Now let's add 2 tablespoons of cocoa powder. Now let's add 1/4 teaspoon of baking powder. Let's mix it once. Now let's add 2 teaspoons of oil. Now let's add 2 spoons of Nutella. Now let's add 1/4 cup of milk. Now let's mix it well. Now let's microwave it for 2 minutes on high speed. Now it's time to check our mug cake. It's ready. See, it looks so delicious.
everyone, summers have kicked in, so now let's make mango popsicles. Why to wait? Let's start the recipe. In a blender, let's add 2 cups of mangoes. Now let's add 1/4 cup of milk. Now let's add 1/4 cup of fresh cream. Let's add 2 tablespoons of sugar. Now let's blend. Let's add a mixture in the popsicle mold. Let's freeze it overnight. See guys, it's ready. Let's try it. Let's try the mango popsicle. It tastes awesome. Hey guys, today we are making peanut butter cookies. Let's start right now. First we are gonna add 1 cup whole wheat flour in our bowl. Let's add half cup of all-purpose flour. 1/4 teaspoon of salt. Half teaspoon baking powder. Let's mix our dry ingredients all together. Now we will add half cup butter in a separate bowl. In this we will crack 1 egg. One teaspoon vanilla essence. 2/3 cup of brown sugar. Half cup of peanut butter. Now we will mix our wet ingredients with a hand blender until it is smooth.
batter in the fridge for half an hour. It's time to shape our cookies. Meanwhile, we will preheat our oven at 180 degrees Celsius for 10 minutes. Now we will make a design with the help of a fork. Now we will bake our cookies for 10 to 12 minutes. Our cookies are baked and now we are going to put them on a wire rack to cool down. See, it's so soft from in and so crunchy from out. It tastes amazing. Don't forget to like, share and subscribe to our YouTube channel. Hey everyone, welcome back to our channel Exotic Music. Today I have a special recipe for all the sweet lovers out there. And that's chocolate brownie that takes 2 minutes that's made in a microwave. Let's dive into the recipe. For that, we'll take 2 tablespoons of butter in our bowl. In our butter, we'll add 2 tablespoons of dark chocolate. We will microwave this for 30 seconds. Butter and chocolate is melted, now we'll give it a good mix. Now we will add 5 tablespoons of whole wheat flour in this. Now let's add 2 tablespoons of powdered sugar.
it's time to add 4 tablespoons of milk. Now we will mix it nicely. See, our batter is ready. In our parchment lined microwave bowl, we will add our batter. Now we will sprinkle more chocolate on the top. Now we will microwave our brownie for 2 minutes on high speed. See guys, how quick this recipe is. Now we will take it out and keep it on our serving plate. Good done. Hello friends, welcome back to Exotic Musings. Today we have a very special Diwali recipe. It's Shrikhand Tart. It's an Indian fusion dessert. On all the sides of the
Our channel. Today we are going to be making pan shots. It's such a simple and easy recipe and can be made in 5 minutes. In a blender, add 5 to 6 betel leaves. And subscribe below. Also turn on the post notifications so that you will be notified every time there is a new video. Thanks for watching. Hello friends, welcome back to our channel. Today's recipe is extremely special as when I was young, this prasad or called Aate ka halwa would be made with lot of excitement and love celebrating Gurpurav. In Punjabi families, this prasad would be made for any special occasion and now is eaten all over the world. It is so simple and you require only 4 ingredients and the ratio is always same for all. In a heavy bottom pan, add 1 cup ghee, and 1 cup whole wheat flour. And fry on medium heat till brown in color. It will take approximately 5 to 7 minutes and keep stirring continuously. Once the flour is done, add 1 cup water and cook until the water is fully absorbed by the flour. Once the water is absorbed, now add 1 cup sugar and cook the halwa for another 3 to 4 minutes till sugar is melted and till everything comes together. And see now the halwa has come all together and prasad has left ghee on sides. Serve hot and enjoy with your loved ones. Hit the like button, comment, share and subscribe below. Also turn on the post notifications so that you will be notified every time there's a new video. Thank you for watching.
Hello friends, welcome back to our channel. Today's recipe is eggless tutti frutti cake. It's such a simple bake, utterly moist, fluffy, soft and absolutely gorgeous cake embossed with tiny fruit bites, and most importantly, it's eggless and so very good in taste. Let's start the recipe. In a bowl, add half cup curd, half cup sugar, half cup oil, 1 teaspoon vanilla essence and whisk together until it is thoroughly combined. Now place a sieve over the bowl and add 1 cup whole wheat flour, 1/4 teaspoon salt, 1 teaspoon baking powder, half teaspoon baking soda and sieve all of them. It makes the cake light. Now mix the batter using cut and fold method. Now add 1/4 cup milk and mix well, forming thick flowing consistency batter. Guys, look at this batter, it looks so good. In a separate bowl, add 1/4 cup tutti frutti with 2 to 3 tablespoons chopped almonds and add 2 tablespoons whole wheat flour and mix. This is the trick so that tutti frutti and almonds doesn't stick to the bottom of the cake. Add dusted tutti frutti to the batter and fold gently and do not overmix. Now our batter is ready. Pour the batter into the greased pan. This is approximately 8 inches pan. Now sprinkle few tutti frutti and chopped almonds on the top of the batter. And bake at 180 degrees for 30 to 35 minutes. Guys, look at this cake. Doesn't it look so gorgeous? And it's so simple to bake. Our cake is ready. Insert a toothpick and check whether the cake is baked evenly. If the toothpick comes out clean, it shows that your cake has been baked perfectly. Let the cake cool down and then it's ready to be served. If you are looking for an easy, delicious and eggless tea cake recipe, make this fail-proof eggless tutti frutti cake and I am sure you all will definitely love it. Hope you like this recipe. Hit the like button, comment, share and subscribe below, and also turn on the post notifications so that you will be notified every time when there is a new video. Thanks for watching. Around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung. Hello friends, welcome back to our channel.
Hello everyone, welcome back to our channel. Today's recipe is apple oats pancake. These pancakes are so soft, fluffy and just melts in the mouth. The goodness of oats coupled with whole wheat flour and apples makes these pancakes filling and very nutritious. Let's start the recipe. In a food processor jar, add 1 cup chopped apple with peel, 1 egg, half cup oats, 3/4 cup whole wheat flour, 1 teaspoon salt, 2 tablespoons sugar, half teaspoon baking powder, 1/4 teaspoon baking soda, 1 teaspoon cinnamon powder, 1 tablespoon olive oil and 1 cup milk. Now blend all these ingredients together until completely smooth. Take out the mixture in a bowl. Now heat a non-stick pan and add olive oil. Brush it gently. Now using a ladle, pour the batter onto the pan and allow to cook on a low heat. Once you see the bubbles on one side, flip and allow to cook from another side. Once it is cooked, take out on a plate and cook the remaining batter in the same process. Drizzle some maple syrup, chocolate syrup or honey and add few sliced apples and serve. These pancakes are amazing and great as a wholesome breakfast and even good for dessert too. In fact, you can use this same batter to make some delicious waffles with crispy edges and soft centers. I hope you like this recipe. Hit the like button, comment, share and subscribe below, and also turn on the post notifications so that you will be notified every time there's a new video. Thanks for watching. हेलो एंड वेलकम बैक टू एक्सोटिक म्यूजिक्स। आज फिर से मैं आप सबके लिए एक नवरात्रा स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ जिसका नाम है व्रत के चावल की खीर, वो भी मैंगोज के साथ। व्रत के चावल को समा चावल या बार्नयार्ड मिलेट भी बोलते हैं। ये चावल बहुत ही हेल्दी, न्यूट्रिशियस और इजी टू डाइजेस्ट है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक बोल में 1/4 कप समा चावल लें और उसको पानी के साथ 2-3 बारी अच्छी तरह से धो लें, क्योंकि कई बारी इस चावल में मिट्टी भी होती है। और फिर उसको छान कर एक साइड पे रख दें। यहाँ पर हम आज 1 लीटर दूध की खीर बना रहे हैं। सो उसके लिए हमें 1 कप मैंगो पल्प चाहिए होगा। मैंगोज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर उसका पल्प तैयार कर लें।
अब एक नॉनस्टिक कढ़ाई या हेवी बॉटम कढ़ाई में 1 लीटर फुल क्रीम दूध डालें और हमें इस दूध को मीडियम फ्लेम पे बॉईल करना है। और इसमें हमें अपने वॉश किए हुए समार चावल डालने हैं और इसको मिक्स करके हल्की आंच पर 5 से 7 मिनट तक पकाएं। साथ में कुछ केसर के स्ट्रैंड्स भी डाल दें। हमें इस समा चावल को अच्छी तरह से दूध में पकाना है, तो इसको पकाने के लिए कम से कम 20 से 25 मिनट लग जाएंगे और साथ में दूध भी गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा दूध थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होना शुरू हो गया है और जितना भी कढ़ाई पर साइड्स पे चिपक जाता है उसको भी हमें स्क्रैच करके और दूध में ही मिला देना है। ऐसा करने से हमारी खीर बहुत ही टेस्टी और क्रीमी बनेगी। और देखिए यहाँ पर हमारे समा चावल ऑलमोस्ट पक गए हैं और हमारा दूध भी काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। अब इस खीर में 1/4 कप चीनी डालें और इसको मिक्स करके अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट तक और पकाएं। देखिए फ्रेंड्स, कितनी क्रीमी लग रही है और उसके साथ साथ ये बहुत ही न्यूट्रिशियस और हेल्दी भी है। अब हम इस खीर को थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे और इसमें हम मैंगो पल्प भी डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। जैसे ही आप मिक्स करना शुरू करेंगे, इस खीर का रंग भी थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाएगा। अब इस खीर को एक बोल में निकाल कर 4 से 5 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें ठंडा होने के लिए। ये ठंडी ठंडी खीर बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी लगती है। अब इस खीर को सर्व करने के लिए सर्विंग बोल्स में डालें। और उसको कटे हुए मैंगो से गार्निश करें। और साथ में कटे हुए कुछ बादाम डालें और कुछ पिस्ता भी डालें और थोड़ा सा केसर स्ट्रैंड्स डालकर गार्निश करें एंड बिल्कुल चिल्ड सर्व करें। ये खीर बहुत ही रिच और माउथ वाटरिंग डेजर्ट है एंड बिल्कुल परफेक्ट है फास्टिंग के दिनों के लिए। अगर आप फास्टिंग भी नहीं कर रहे तब भी आप इस डेजर्ट को एंजॉय कर सकते हैं और इम्प्रेस कर सकते हैं अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को। ये बहुत ही हेल्दी और सुपर डिलीशियस डेजर्ट है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो फ्रेंड्स लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। हेलो एंड वेलकम बैक टू एग्जॉटिक म्यूजिक्स। तो क्यों ना एक आइसक्रीम बनाई जाए, वो भी बहुत ही बढ़िया होममेड ओरियो आइसक्रीम, जो बच्चों को क्या इनफैक्ट हम सबको बहुत ही पसंद है। बहुत ही इजी एंड क्विक बनती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर हमारे पास 10 से 12 ओरियो बिस्किट्स हैं और उन सबको हम ब्लेंडर जार में डालेंगे और हमें उनको कोर्सली क्रश करना है।
यहाँ पर देखिए हमने पूरा क्रश नहीं किया है, कुछ कुछ टुकड़े भी बाकी हैं। अब हमें एक बड़े बोल में खूब सारी आइस क्यूब्स लेनी है और उसके ऊपर एक चिल्ड बोल रखना है। ऐसा करने से हमारी क्रीम जल्दी ही विप हो जाएगी और साथ में क्रीम के फटने का डर भी नहीं होगा। अब उस चिल्ड बोल में हम 250 ml फ्रेश क्रीम डालेंगे। इस क्रीम को भी 24 आवर्स के लिए चिल करना है रेफ्रिजरेटर में और इस क्रीम को ब्लेंड करें अप्रॉक्सीमेटली 7 से 8 मिनट के लिए। और आप देखेंगे इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही लाइट और फ्लफी होती जाएगी। हमें इस क्रीम को तब तक विप करना है जब तक इसके स्टिफ पीक्स ना बन जाएं। अब ये देखिए हो गया है हमारा क्रीम तैयार। अब इसमें हम 1 टीस्पून वनीला एसेंस डालेंगे और साथ में 125 ml कंडेंस मिल्क भी डाल देंगे। अब हमें इन सबको फोल्ड करना है हल्के हाथों से। अब देखिए ये हमारी वनीला आइसक्रीम तैयार है। अब हम इससे ओरियो आइसक्रीम बनाएंगे। अब यहाँ पर हम अपने क्रश किए गए ओरियो बिस्किट्स डालेंगे और उन सबको जेंटली फोल्ड करेंगे। अब आप इस मिक्सचर को कंटेनर में डालें। ये देखिए बहुत ही क्रीमी थिक आइसक्रीम हमारी तैयार है। एंड दिस आइसक्रीम इज सो यम। नथिंग कैन बीट अ होममेड आइसक्रीम। अब हम अपने कंटेनर को 2 से 3 बारी टैप करेंगे। ऐसा करने से जितने भी अंदर गैप या एयर बबल्स होंगे वो भी निकल जाएंगे। अब हम थोड़ा सा अपना क्रश किया हुआ ओरियो बिस्किट्स ऊपर डाल देंगे। अब इस कंटेनर को बंद करके ओवरनाइट या 7-8 घंटे के लिए फ्रीज होने के लिए रख देंगे। ये देखिए हमारी आइसक्रीम तैयार हो गई है। कितनी क्रीमी और अमेजिंग लग रही है। मेरे बच्चों को होममेड ओरियो आइसक्रीम बहुत ही पसंद है। आई एम श्योर आपके बच्चों को भी बहुत अच्छी लगेगी। ये आइसक्रीम बहुत ही रिच, क्रीमी और परफेक्ट है समर्स के लिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो फ्रेंड्स लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। सी यू नेक्स्ट टाइम। हेलो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी रक्षाबंधन स्पेशल रेसिपी है जो कि है इंस्टेंट मिल्क बर्फ़ी। इस मिठाई को बनाने के लिए बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। चलो हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। एक नॉनस्टिक कढ़ाई या हेवी बॉटम पैन में 1/4 कप घी डालना है और उसके साथ 1/2 कप मिल्क। आप यहाँ पर फुल क्रीम या टोन मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। और हमें एक बारी इसको हल्का गरम करना है। जब ये दूध थोड़ा सा गर्म हो जाए फिर हम इसमें डालेंगे 2 कप मिल्क पाउडर। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मिल्क पाउडर एकदम से सारा मत इकट्ठा डालें, थोड़े थोड़े बैचेस करके डालें। मैंने इसको 4 बैचेस में डिवाइड करके डाला है। हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि इसमें लम्प्स ना पड़ जाएं। आप इसे कंटिन्यूसली मिक्स करते रहें ताकि इसमें लम्प्स ना डल जाएं। और साथ में हमें इसे लो फ्लेम पर ही पकाना है। ये मिल्क पाउडर हमारा मिल्क और घी के साथ पूरा डिज़ोल्व हो जाएगा।
यहाँ पर देखें हमारा मिक्सचर थोड़ा थोड़ा स्टिकी है और पैन के साथ भी चिपक रहा है और हमें इसे 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पर मिक्स करते हुए पकाना है। यहाँ देखें ये मिक्सचर थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होना शुरू हुआ है। अब इसके अंदर हम 1/4 कप पाउडर्ड शुगर डालेंगे और उसके साथ ही 1 टीस्पून इलायची पाउडर भी डाल देंगे। अब फिर से हमें इसे मिक्स करना है। अगेन 4 से 5 मिनट के लिए हमें लो फ्लेम पे इसे मिक्स करते हुए पकाना है। यहाँ पर मैंने चीनी का इस्तेमाल बहुत कम किया है क्योंकि ऑलरेडी मिल्क पाउडर में एक स्वीटनेस होती है। चीनी डालते ही आप देखेंगे चीनी भी अपना थोड़ा सा पानी रिलीज़ करती है और हमारा मिक्सचर थोड़ा सा पतला हो जाता है, बट स्टिल हमें फिर भी इसको अगेन 4 से 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे कुक करना है जब तक इसका एक बॉल जैसा मिक्सचर तैयार नहीं हो जाता। आप इसे जैसे जैसे कंटिन्यूसली हिलाते जाएंगे ये हमारा मिक्सचर भी कुक होता जाएगा। इस मिक्सचर को पकाने के लिए हमें 10 से 12 मिनट लग जाते हैं और बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बिल्कुल आपको लो फ्लेम पे ही पकाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका बॉल टाइप स्ट्रक्चर तैयार हो गया है। ये बहुत ही इंस्टेंटली बन जाती है, बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस भी होती है। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी पे आ गया है जैसे हमें चाहिए। अब जिस ट्रे में हमें अपनी बर्फ़ी को सेट करना है उसे अच्छी तरह से घी से ग्रीस करना है। अगर हम इस ट्रे पर घी नहीं लगाएंगे तो हमारी बर्फ़ी इस पर स्टिक हो जाएगी और आराम से निकल नहीं पाएगी। अब हम अपने मिक्सचर को ग्रीस ट्रे पर निकाल देंगे। अब हमें इस मिक्सचर को अपने स्पैचुला के साथ इवनली स्प्रेड करना है। ऐसा करने से हमारी बर्फ़ी की बहुत अच्छी शेप आएगी। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको हाथ से इसको नहीं फैलाना क्योंकि ये मिक्सचर बहुत ही गर्म है, तो आप स्पैचुला की हेल्प के साथ इसको इवनली स्प्रेड कर सकते हैं। अब हम थोड़े से कटे हुए बादाम स्प्रिंकल करेंगे। और साथ में ही थोड़ा सा कटा हुआ पिस्ता भी स्प्रिंकल करेंगे। अब हम अपने ड्राई फ्रूट्स को स्पैचुला की हेल्प से थोड़ा थोड़ा अंदर की तरफ प्रेस कर देंगे। ये देखिए हमारी बर्फ़ी कितनी सुंदर लग रही है और इसको हम रूम टेम्परेचर में 1 से 2 घंटे के लिए सेट होने रख देंगे। अब आप देखें ये बर्फ़ी 1 घंटे के बाद कितनी अच्छी तरह से सेट हो गई है। अब आप नाइफ़ की हेल्प से कोई भी शेप में कट कर सकते हैं। आप देखिए मैं इसको बिल्कुल नॉर्मल साइज़ में रेक्टेंगल शेप्स में छोटे छोटे पीसेस में कट कर रही हूँ। हमारी बर्फ़ी बहुत ही परफेक्ट तरीके से सेट हुई है। अगर आपके नाइफ़ पे थोड़ा थोड़ा बर्फ़ी का मिक्सचर लग जाए तो आपको एक टिश्यू पेपर से बिल्कुल क्लीन कर लेना है ताकि दोबारा काटते समय आपकी बर्फ़ी के एजेस बिल्कुल क्लीन निकलें। देखिए कितनी स्मूथली कट रही है। अब मैं आपको एक बर्फ़ी का स्लाइस निकाल कर दिखाऊंगी, कितनी अच्छी तरह से सेट हो गई है। इसका आप टेक्सचर देखिए कितना ही बढ़िया आया है, बिल्कुल बाज़ार जैसी बर्फ़ी लग रही है। देखिए कितना ही बढ़िया टेक्सचर और बहुत ही टेस्टी बनी है। आप ज़रूर ट्राई करिए इन त्योहारों पर अपनी फैमिली के लिए। थैंक यू सो मच।